مجبوری ہے سجاد صاحب ضروری ہے مجبوری ہے سجاد صاحب ضروری ہے آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے انشاءاللہ ٹورسٹ ہاری انشاءاللہ ٹورسٹ ہاری انشاءاللہ ٹورسٹ ہاری انشاءاللہ آواز تو ہمیں ہے جیت ہماری انشاءاللہ جیت ہماری انشاءاللہ جیت ہماری انشاءاللہ انتظاری انشاءاللہ انتظاری انشاءاللہ انتظاری انشاءاللہ جیت ہماری انشاءاللہ سجاد صاحب کا ہم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سجاد صاحب کا ہم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سجاد صاحب کا ہم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم جموں کشمیر پیپلز کانفرنس جموں کشمیر پیپلز کانفرنس سجاد صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سجاد صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جیت تمہاری جموں اینڈ کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد مسٹر سجاد غنی لون صاحب زندہ باد مسٹر آصف لون صاحب زندہ باد نارک کی مجبوری ہے سجاد صاحب ضروری ہے کشمیر کی مجبوری ہے سجاد صاحب ضروری ہے سجاد صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سجاد صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جیت ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ ہاری انشاءاللہ ٹورسٹ ہاری انشاءاللہ عمر ہاری انشاءاللہ عمر ہاری انشاءاللہ جیت ہماری انشاءاللہ ہم ٹورسٹ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں آپ نے کہا نا ٹورسٹ ہاری ہم ٹورسٹ انہیں اس لیے کہہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں آیا جب وہ 1 منٹ بول یار یہ بارہمولہ پارلیمنٹ منتا ٹورسٹ دیکھیے جی آپ نے ہمیں سوال کیا بہت اچھا سوال کیا آپ انہیں ٹورسٹ کیوں کہہ رہے ہیں ہم انہیں ٹورسٹ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بارہمولہ پارلیمنٹ ہلکا انتخابی سیٹ کا الیکشن آج تک وہ کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آئے اور عمر عبداللہ اور آج جب الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ایز ٹورسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس لیے ہم انہیں ٹورسٹ کہہ رہے ہیں اور انہیں کوئی بھی حق نہیں ہے ہمارے اس بارہمولہ ایریا میں کوئی بھی نارتھ کشمیر میں گھومنے کا اس لیے ہم انہیں ٹورسٹ کہہ رہے ہیں اوکے نہیں جی آپ نے انہوں نے بولا ٹورسٹ بنا نیشنل کے خلاف اتنے نعرہ بازی کیوں دیکھو اگر باقی پارٹی بات سنو میں 70-80 سال کا ہوں اتنا ظلم اس کے دادا نے کیا اتنا اس ظلم نے عمر عبداللہ نے کیا فاروق عبداللہ نے کیا ایک بولی کھاتا تھا اس میں ہندوستان میں دوسرا بولی کرتا تھا کشمیری کو کشمیریوں کا خون اس نے پیسا کشمیری آتا نہیں ہے اس کو کیا کیا اس نے پہلے 70 سالوں سے افسر کا تمام کچھ اتنا ظلم ہر ایک ظلم آج ہو گیا آج 370 کا اسے اٹھایا آج کچھ بھی یہ چلے گا اس کو ٹورسٹ ہم نہیں بولیں گے اور کیا بولیں گے میں آپ کو میں میڈیم کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں میری میسج عمر عبداللہ کے لیے نہیں ہے میری میسج NC کے لیے نہیں ہے میری میسج کسی ادر پارٹی کے لیے نہیں ہے میری میسج میری عوام کے لیے میری میسج میری اس بے روزگار یوتھ کے لیے جو ڈرگس کر رہے ہیں میری میسج ان کے لیے میری میسج ان کے لیے ہے جو ابھی بے روزگار میرے بھائی MBBS کر کے بیٹھے ہیں ایک ڈگری پہ انویسٹمنٹ فیملی کا ہوتا ہے اگر MBBS کریں گے 40-50 لاکھ کی ڈگری ہوتی ہے تو 50 لاکھ
खर्च करके आप डिग्री कर रहे हो, उसके बाद हम बेरोजगार हैं। क्या हमें हक नहीं है आम जैसे हिंदुस्तानी की तरफ जीने का? क्या हमारे लिए पीएस है? क्या हमारे लिए पैलेट गन्स है? क्या मेरी माँ बहन वो इज्जत डिजर्व नहीं करती है जो एक हरियाणा की करती है, जो एक चंडीगढ़ की करती है, जो एक औरत चंडीगढ़ की, दिल्ली की औरत, मुंबई की औरत डिजर्व वो इज्जत करती है? क्या मेरी माँ बहन, मेरी कश्मीरी माँ बहन वो इज्जत डिजर्व नहीं करते? हमारे साथ इन्हें आज तक जुल्म किया है। आज इसको मकबूल भट्ट को जो कितने कत्ल हो गया, मैं 80 साल का हूँ, मुझे पता है कितना धोखा किया शेख अब्दुल्ला ने, कितना धोखा किया हमें ये पता। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं I am a 26 years old youth. मैंने आज तक उमर अब्दुल्ला को डिस्ट्रिक्ट बारामूला कभी नहीं देखा। I am 26 years old. मैंने 26 साल का हूँ मैंने 26 साल को कभी उमर अब्दुल्ला को बारामूला में नहीं देखा। वो क्या हमारे बारामूला के लिए करेंगे? वो क्या मेरे नॉर्थ कश्मीर के लिए करेंगे? वो बारामूला के लिए क्या करेंगे मुझे बताइए आप। उनके तो आज तक पार्लियामेंट में 9 मेंबर गए, वो दिखाए होंगे कौन सी तरक्की की। उनका तो उड़ी में मेंबर था जो नॉर्थ कश्मीर का था, अभी तक उड़ी में पब्लिक टॉयलेट नहीं बना है, पब्लिक टॉयलेट फायर सर्विस नहीं है बूनियार में। आप देखो उड़ी में जाइए, डेवलपमेंट के नाम पे पीएस है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे पैलेट है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे बस लोगों के साथ गद्दारी है, लोगों का खून है। आज मेरी यूथ जो है बेरोजगार है, सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं। अगर वो कारोबार में होते, अगर उनका रोजगार किसी जगह पे होता, मेरी यूथ आज इतनी तबाह नहीं होती। MBBS करके मेरे भाई बहन इस टाइम पे घर नहीं बैठे होते। 40-50 लाख की डिग्री करके मेरा भाई बहन घर पे नहीं होता है। सजाद साहब का नारा ही है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। हमें वो इज्जत चाहिए जो एक आम हिंदुस्तानी को मिलती है, हमें वो इज्जत चाहिए, हमें वो तरक्की चाहिए जो एक आम हिंदुस्तानी तरक्की कर रहा है। मेरे कश्मीरी भाई को वो हक है। नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग आए हैं वो इस जोश जज्बे के साथ है। हालांकि कहा गया था कि कम लोग इसलिए यहाँ पे आएंगे क्योंकि कल फ्लड्स आए हैं पूरे कुपवाड़ा या बारामूला का, हमने देखा था आधा से ज्यादा हिस्सा, इसलिए उस बिनिस्बत में कहा गया था कि कम लोगों को यहाँ पे लाएंगे। लेकिन जितने लोग आए हैं वो जिस तरह से ये लोग टैग लिखते रहते हैं कि जोश, जुनून, जज्बा वो भरपूर है। और कुछ साथी जो है इनके वो यहाँ पे मौजूद है। कैमरा पर्सन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये आप देख सकते हैं। जनाब क्या नाम? शहबाज अहमद। कछु तो रोजा जनाब? अच्छा, तो क्या जोश जज्ब आज क्या बसान पीपल्स कॉन्फ्रेंस कतनस वुनस? पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपको तो पता ही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त कहाँ पे है। हम तो बहुत ही आसमान छूने जा रहे हैं और छू भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये आसमान कैसे छू रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है? कतारें देख रहे हो, हमारी मेहनत है, रंग जो लाई है। आपको बारामूला में पूरा सैलाब दिख रहा है जी। हमारे चेयरमैन साहब ने बोला था कि कोई जरूर भी नहीं आने की है, क्योंकि कल फ्लड की वजह से बहुत सारी मुश्किलात भी हुई है हमारे लोगों को। तो इसलिए हमने अपने थोड़े से कुछ खुद ही आए हैं, अपने जो हमारे जवान सियासी हरीफ है एक बड़ी सियासी जमात से जी, और वो साबिक़ चीफ मिनिस्टर है, उस चीज का एहसास नहीं है आपको? देखिए, हमें उस चीज का एहसास करना ही क्या। यहाँ अफजल गोरू साहब आपको तो याद होंगे, मकबूल भट्ट साहब आपको तो याद होंगे, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। उनका जो कारनामा है वो तो इन लोगों ने देखा है। अब ये चीज खुल के क्यों नहीं बोल रहे आप? हर जी जी, अच्छा मुझे ये भी बताइए ना, अच्छा ये भी बताइए ना कि वो तो कल आए थे, वो जब फ्लड्स वहाँ पे आए थे कल, वो कह रहे थे कि हम तो यहाँ पे पहुँच गए हैं जी, इतने दूर दराज इलाकों में पहुँचे हैं। तो फिर वो तो कह रहे हैं कि मैं यहीं से हूँ, हम भी यहीं के हैं। जो लोग मुझे टूरिस्ट कह रहे हैं ये उनको जवाब है। कह रहे हैं हम यहाँ से हैं। जब वो CM थे तब कहाँ से थे? तब तो कभी दिखे नहीं हमें वो कुपवाड़ा में। आज तक तो हमें उनकी वो मतलब जो कल वो चल रहे थे हमें तो कभी दिखे नहीं वो। हाँ। वो टूरिस्ट की तरह आए थे कल और चले गए। अच्छा ठीक है, टूरिस्ट की तरह ही वापस भेज देंगे यहाँ से। अच्छा, मैं जनाब आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर आपको? आज आप लोग इतने जोश जज्बे के साथ हैं कि आपके लीडर जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, जीत हमारी होगी इंशाल्लाह, यही तो लग रहा है। अच्छा, लेकिन पीपल्स वाले तो अब दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो है कुपवाड़ा से ही जीत के निकलेंगे, बाकी जो वोट्स आएंगे वो लीड होगी। ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है लोगों को? नहीं, हम नदामत के साथ कह सकते कि हम जीत जाएंगे। अच्छा,
ठीक है कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। अच्छा, डिग्निटी की बात करें, जो हमसे छीना गया, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट, मेरे लीडर का ये कहना है कि जो हमारे नौजवान से आज तक छीना गया, जो हमारे यहाँ के कश्मीरी अवाम से छीना गया, वो उनको वापस मिलना चाहिए। उसके बाद जहां तक डेवलपमेंट की बात है, वो आया है जो हमारे लीडर ने हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं, जो मेरे लीडर ने 2.5 साल में वहां के करके दिखाया। मुझे बताइए खुदा रहा, इनके लीडरों में जो हमारे सियासी हरीफ है, 70 सालों में इन्होंने वो काम कहां पे करके दिखाया। जहां तक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने इतना जो डेवलपमेंट के एतबार से उन्होंने एक इनकलाब ला के रख दिया, उन्होंने एक बेंचमार्क वहां पे सेट करके रख दिया। मुझे खुदा रहा बता दीजिए, जो इनके लीडर हजरात है, जो पार्लियामेंट में जिनको हमने भेजा, जिनको हमने फुल मेजॉरिटी दे दी असेंबली में, मुझे बताइए उन्होंने आज तक हमारे लिए क्या किया। लेकिन एक रोल उनका जबरदस्त रहा है, वो ये कि उन्होंने 70 साल में हमारे कब्रिस्तान यहां पे भर दिए, हमारे नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया, बस ये रोल लगा रहा है। लेकिन मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का, मेरे लीडर का ये कहना है कि हमारी पार्टी सिर्फ डिग्निटी और डेवलपमेंट पे काम करेगी। और मुझे खुदा रहा बताइए, यहां कश्मीर में आज तक सिर्फ 2 फांसियां लग चुकी है, 2 फांसियां लग चुकी है। 2 फांसियों पे सिर्फ या तो एक बाप का सिग्नेचर है, एक बेटे का सिग्नेचर है। इसका मतलब यह है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ खून से रंगे हुए इस कौम ने उनको रिजेक्ट कर लिया है। यहाँ के नौजवानों ने उनको रिजेक्ट कर लिया है। आज हमें एक ज़हीन, ध्यानदार और उस लीडर की जरूरत है जो हमारी बात आईवान में करेगा। क्या बात करनी है आईवान में, वो भी तो बता दीजिए आप लोग हमें आज, जो आपको देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज, वही हम चाहते हैं कि जो हमसे आज तक छीना गया, जो हमारे लीडर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो इज्जत यूपी, बिहार या अदर स्टेट जो हिंदुस्तान की है, जो वहां के युवाओं को इज्जत मिल रही है, वही इज्जत मेरे यूथ, जो कश्मीर के युवा है, उनको मिलनी चाहिए। डेवलपमेंट के एतबार से जब बात करेंगे, मुझे बताइए, वाहिद रियासत है करीबन, हम हिंदुस्तान की जब बाकी रियासतों की बात करें, हम उनसे करीबन 70 साल अभी पीछे है। मुझे बताइए 60 साल क्यों? उसीलिए हमें सजाद साहब हमने ऐड कर लिया है, यहाँ के नौजवानों ने ऐड कर लिया है। इस बार सिर्फ सजाद गिरी लोन को हम आईवान में भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कम टाइम में आपको एक नई चेंज नजर आएगी, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ही चेंज फॉर डेवलपमेंट। हमने देखा। चलिए और एक नौजवान से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा है, मैं गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी का हेड। अच्छा, आप गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे हैं। चलिए, ये तो बंदा और एक हमें मिल गया। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, आप जनाब के गुरेज में क्या सूरत हाल है? वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इनके तो वहाँ पे वर्कर्स तक नहीं है। अच्छा जी, वो तो आपको दिखेगा 4 तारीख को, और इनकी दजिया नहीं उठाई तो मेरा नाम मिटा देना। और मैं सियासत उसी टाइम छोड़ूंगा अगर हमने ली वहां से गुरेज से नहीं। आज गुरेज का नौजवान जाग गया, आज गुरेज का बुजुर्ग जाग गया, आज गुरेज की पूरी जो जमात जो है वो जाग गई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ इस्तेसाल किया। 2010 में उन्होंने हमारा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमसे छीना और उसकी सजा जो है आज हमारे नौजवानों को मिल रही है। हमारी बिल्कुल, हमारा वहां पे कोई रिसोर्स नहीं है। वे अगर कुछ भी अभी तबाही हो गई हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ये गुरेज में तबाही है। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आप तो और ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं इनसे। जज्बात तो आएगा भाई साहब, मैं MBA करके, MA इंग्लिश करके, BEd करके, आज मैं थोड़ी इसके खिलाफ मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने नजीर गुरेजी को पकड़ा और बोला कि आपने हमारे खून के साथ खेला, आपने हमारे जज्बात के साथ खेला, क्योंकि आपने हमारी जो है हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बैन आपने कर, उस पर आपके साइन थे, जिसकी वजह से आज गुरेज में अगर आप किसी भी बच्चे के ऊपर पत्थर लगाओगे तो वो MA BEd MSc नेट सेट JRF करके बैठा हुआ है। और आज बेरोजगारी की वजह से ये नौजवान भटक गया, और गुरेज के जो नौजवान जो है आज आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उठेंगी गुरेज से। मुझे आप ये बताइए सच में कि आपने क्या डिग्री की, क्योंकि आप जब इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा नौजवान होगा ये उसको दुख है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला जो मसला ये तो वही दुख की बात करेगा भाई साहब। मैं मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, MBA फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी और BEd करके मैं वो बंदा हूं जिसने फिर नौकरी नहीं की, इसलिए क्योंकि मेरे लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा था। तब से मैंने सजाद लोन साहब का हाथ थामा और मरने दम तक इसका हाथ थामूंगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोज आके टॉर्चर करके, कुछ भी करके, हर चीज की लालच देके क्या, लेकिन जब तक सजाद लोन, जब तक सांस है इसमें समझा में और इसके अवाम में, तब तक सजाद लोन के साथ हम खड़े हैं। आपका क्या नाम है? गुलाम सिंगार। कहाँ से हैं आप? पटन कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वैसे हम लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन आज एक ही जगह पे सब लोग मिल रहे हैं। सर, अच्छी बात तो मुझे ये बताइए कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह के हालात हैं? आप पटन से यहाँ पे आगे, हमने देखा इमरान साहब भी थे आगे। आई एम इलेक्टेड लास्ट 12 ईयर्स एक्स सरपंच इस वक्त। ओके, 12 सालों से मुझे लगता है 90% इंशाल्लाह ताला सजाद साहब ही वोट लेंगे पटन से। नहीं तो पर जब आप लोग
90% हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दे रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्या दे रहे ग्रास हो? रूट का मैं कंडीशन टर्म्स बताऊंगा ना मैं। अच्छा। जो मुझे 20 साल से पता था, 20 साल से पता है, पटन में आज तक एनसी वालों ने कुछ नहीं किया है। मैं डोर डोर जाकर आप लोगों को दिखाऊंगे जो भी काम आज तक हुआ। डिग्निटी एंड डेवलपमेंट हम चाहते हैं। सजाद साहब ने वादा किया था पूरे बारामूला के लोगों के साथ, डिग्निटी, लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए और तरक्की होनी चाहिए। आज तक हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो उनका क्या बायस है, सिर्फ एनसी वालों ने किया है। सपूत और कपूत कितने लोग हैं? ये तीन होते हैं। तीनों में से पूत हो गया सो जो बाप का प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएगा। सपूत होता है वो जो अपने इमादूद में रखेगा। कपूत होता है वो जो बेड़ा ही गर्क कर देगा। बेड़ा गर्क करने में पहले शेख अब्दुल्ला वजीर आजम था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आया, वो वजीर आला रहा। उसके बाद उमर साहब आया, वो वजीर आला भी रहा, MP भी रहा। अब इंशाल्लाह ताला DDC इलेक्शन के उमर अब्दुल्ला को भी हराएंगे हम वहां से। जरूर ये वादा है। करके लिया जा रहा है इस आप चेन बना